شام کی میٹنگ میں شرکا ہیں، ان سب کو خدم کے ادنا سے خادم کی طرف سے شام کا سلام قبول ہو۔ آئیے میرے عزیزو، آج ہم اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ ہم اپنی زندگیوں سے خدا کے بر یسوع مسیح کے نام کو عزت اور جلال دیں، اور ہماری زندگیاں خدا کے جلال کے لیے استعمال ہوں اور اس کا ارشاد اعظم کی تکمیل ہو۔ آج شام ہم خدا کے عظیم کلام کو اس کی مرضی کے مطابق کھولتے ہیں۔ جب تک اس کی رضا نہیں، اس وقت تک ہم خدا کے کلام کو کھول نہیں سکتے۔ اس لیے آج شام جسارت کرتے ہیں کہ خدا اپنے دین ہاتھ کی شفقت برکت ہمیں عطا فرمائے، تاکہ اس کا کلام جو دودھاری تلوار سے بھی زیادہ تیز ہے، جو جان روح بند بند گودے کو جدا کرتا اور دل کے خیالوں کو معلوم کرتا ہے، اسی زندہ کلام کے لیے آج شام ہم آرزو کریں اور دعا کریں کہ خدا قادر آج اپنا کلام دے کر ہمیں برکت دے۔ آئیے میرے عزیزو، عہد کا سفر آج شام ہم کریں گے۔ انبیاء اکبر یسایہ کا صحیفہ اس کا 43 چیپٹر ہے، اور اس کی فرسٹ ورسز سے ہم شروع کر کے تیسری ورسز تک ہم چلیں گے۔ یسایہ کا صحیفہ جو انبیاء اکبر میں شمار ہوتا ہے، اس کا 43 باب پہلی آیت سے تیسری آیت تک آج شام خدا کے کلام کی برگردانی ہم کریں گے، اور ہم آج شام خدا کے عظیم کلام کی برکات، اس کی قدرت، اس کا پیار اور اس کی محبت آج شام ہم رسیو کریں، تاکہ خدا اپنے جلال میں ہمیں بلیس کرے۔ کلام خدا میں لکھا ہے، اور اب اے یعقوب، خداوند جس نے تجھ کو پیدا کیا اور جس نے اے اسرائیل تجھ کو بنایا، یوں فرماتا ہے، خوف نہ کر، کیونکہ میں نے تیرا فدیہ دیا ہے، میں نے تیرا نام لے کر تجھے میرا ہے۔ جب تو سیلاب میں سے گزرے گا تو میں تیرے ساتھ ہوں گا، اور جب تو ندیوں کو عبور کرے گا تو وہ تجھے نہ ڈبائیں گی، جب تو آگ پر چلے گا تو تجھے آنچ نہ لگے گی اور شعلہ تجھے نہ جلائے گا۔ تیسری آیت میں کلم بند ہے، کیونکہ میں خدم تیرا خدا، اسرائیل کا خدا، تیرا نجات دینے والا ہوں۔ میں نے تیرا فدیہ میں مصر کو اور تیرے بدلے کوش اور سبا کو دیا۔ خدا کے عظیم کلام کا پڑھا، سنا اور سمجھا جانا آج شام دی بائبل ویژن کی ساری ٹیم اور جتنے بھی خدا کے کلام کی آواز سن رہے ہیں، خدا کا کلام آج شام ان کو بلیس کرے، آمین۔ میرے عزیزو، آج کے کلام کے مطابق جو ہمارے درمیان میں پڑھا گیا ہے، پہلی آیت کے اندر خدم امت کو وعدہ کرتا ہے اور لکھتا ہے، اور اب اے یعقوب۔ یعقوب سے خدا اس لیے مخاطب ہے کہ یعقوب نے برکت لیتے وقت جب بڑی مشکل سے اس کو برکت ملی تو خدا نے اس کا نام بھی اسرائیل رکھ دیا، اور اسرائیل اس لیے خدا اس کو کہتا ہے کیونکہ اسرائیل ہی تمام امتوں اور قوموں اور نسلوں کی امت ہے، اور اسی میں خدا آج یعقوب سے ہم کلام ہے اور اسی کو اسرائیل کہتا ہے، اے خدا جس نے تجھ کو پیدا کیا، جس نے اے اسرائیل تجھ کو بنایا، یوں فرماتا ہے، خوف نہ کر، خوف نہ کر، کیونکہ میں نے تیرا فدیہ دیا۔ فدیہ پہ آج ہم بات کریں گے۔ فدیہ، اگر ہم عبرانی زبان کا مطالعہ کریں، عبریوز کا، تو فدیہ کو عبرانی زبان میں کوفر، فدیون یا گال کہتے ہیں۔ یہ تین لفظ
फिदिया के लिए इब्रानी ज़बान में इस्तेमाल हुए हैं। अगर हम यूनानी ज़बान का मुताला करें तो यूनानी ज़बान में फिदिया के लिए लौतरान, एंटी लौतरान इस्तेमाल हुए हैं। और आज हम फिदिया पर गौर करेंगे। और फिदिया का मतलब है छुड़ाना, कीमत अदा करना। अगर हम अहबार की किताब के अंदर चलें तो किसी गुलाम को छुड़ाने की कीमत या हर्जाना देना पड़ता था। और आज हम अगर यहाँ पर यसाया के सहीफा में देखें तो यीशु मसीह ने भी अपनी कीमत अदा की है और यीशु मसीह ने तमाम उम्मतों को छुड़ाने, निजात देने के लिए अपनी जान फिदिया में दी है। और उम्मतों को यहाँ पर एक नस्ल की बात नहीं, खुदा उम्मतों की बात करता है। क्योंकि अगर हम अहद जदीद यूहन्ना की इंजील का मुताला करें तो उसके 3 बाब उसकी 16वीं आयत में मरकूम है कि खुदा ने दुनिया के साथ ऐसी मोहब्बत रखी। खुदा ने दुनिया के साथ ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। मेरे अज़ीज़ों, खुदा का कलाम आज शाम जो फिदिये के ताल्लुक से मबनी है उस पर आज शाम हम बात कर रहे हैं। और खुदा ने बख्शिश के तौर पर इकलौता बेटा हमें दिया ताकि क्यों उसकी मोहब्बत के वसीला से जो वो उम्मतों के साथ, नस्लों के साथ रखता है, खुदाम जिस्म से चाहता है कि फिदिया देकर उनको छुड़ाया जाए, कीमत अदा करके उनको छुड़ाया जाए। और मेरे अजीजों, खुदा कादिर अजीम बाप ने अपने बेटे के वसीले से उम्मतों को छुड़ाया है। और यकूब के साथ खुदा हम कलाम है, खुदा उसको याद दिलाता है और कहता है कि अब ऐ यकूब, खुदाम जिसने तुझको पैदा किया, जिसने ऐ इस्राएल तुझको बनाया, फरमाता है खौफ न कर, मैंने तेरा फिदिया दिया। तो मेरे जो जब खुदा आज याकूब को, इस्राएल को याद दिलाता है क्योंकि मैं खुदम तेरा खुदा इस्राएल का कद्दूस। अगर 3री आयत में हम पढ़ें तो वहां पर लिखा है क्योंकि मैं खुदम तेरा खुदा इस्राएल का कद्दूस, तेरा निजात देने वाला। अगर हम 4री आयत यशायाह के सहीफे 43 बाब की 4री आयत पढ़ें तो वहां पर लिखा है क्योंकि तू मेरी निगाह में बेशकीमत और मुकर्रम ठहरा, तू मेरी निगाह में बेशकीमत और मुकर्रम ठहरा और मैंने तुझसे मोहब्बत रखी, इसलिए मैं तेरे बदले लोग और तेरी जान के एवज में उम्मतें दे दूंगा। मेरे अज़ीज़ों, खुदा हमें नहायत ही अजीज रखता है, खुदा हमें बेशकीमत जानता है। इसलिए खुदा ने अपने बेटे की वसासत से जो फिदिया देकर उसने हमें, बल्कि तमाम नस्लों को, देखें ये एक नस्ल की बात नहीं, ये नॉट फॉर क्रिश्चियन, यानी सिर्फ क्रिश्चियनिटी की बात नहीं है, क्योंकि इंजील मुकद्दस का बयान जो है वो उसमें तमाम उम्मतें आती हैं। और यहाँ पर भी हम देखते हैं कि ये 12 कबीले जो हैं, इसराइल जो है तमाम नस्लों की एक कौम है और इसमें तमाम नस्लें शामिल हैं, हिंदू, इलामी, सिख, मुस्लिम, जो भी कौमें जमीन पर बसती हैं वो सब कौमें, उम्मतें, नस्लें, सल्तनतें सब इसमें शामिल हैं। इसलिए खुदा आज तमाम उम्मतों के लिए ये पैगाम रखता है, सिर्फ एक नस्ल के लिए ये पैगाम नहीं है, खुदा तमाम उम्मतों के लिए पैगाम रखता है। और मत सोचें कि खुदा ने जब ये पैगाम दिया कि मैंने दुनिया के साथ मोहब्बत रखी, ये दुनिया का मतलब है तमाम उम्मतों के अंदर जितने भी लोग बसते हैं, खा वो खुदा को मानते हैं या नहीं। खुदा यीशु मसीह ने उनके लिए भी जान दी है जो आग की पूजा करते हैं, जो पानी की पूजा करते हैं, जो पत्थरों की पूजा करते हैं और जो हवाओं की पूजा करते हैं। खुदा कादिर ने सब के लिए जान दी है। और आज हम देखते हैं कि खुदा इस्राएल से कह रहा है कि मैंने खौफ ना कर, मैंने तेरा फिदिया दे दिया है, मैंने तेरा नाम लेकर तुझे बुलाया है। मेरे अज़ीज़ों, आज खुदा आज शाम हमसे भी यही कहता है कि द बाइबल विजन फॉर ऑल
नेशन के लिए खुदा पैगाम रखता है। तमाम ममसूओं से, तमाम नस्लों से, तमाम उम्मतों से खुदा आज मुखातब है और वो याद दिलाता है कि मैंने तेरा फिदिया इसलिए दिया कि मैं तेरे साथ प्यार और मोहब्बत रखता हूं। क्योंकि अगर खुदा को हमसे प्यार और मोहब्बत ना होता तो खुदा कभी भी अपने बेटे यीशु अल मसीह को आसमान से जमीन पर ना भेजता। अगर हम यशायाह के सहीफे की 44 बाब की 24 आयत पढ़ें तो वहां पर लिखा है, खुदाम तेरा फिदिया देने वाला, खुदाम तेरा फिदिया देने वाला जिसने रहम ही से तुझे बनाया, यूं फरमाता है कि मैं खुदाम सबका खालिक हूं, मैं खुदाम सबका खालिक हूं, मैं ही अकेला आसमान को तानने और जमीन को बचाने वाला हूं, कोई मेरा शरीक नहीं। मेरे अजीजों, खुदाम खुदा कादिर जो फिदिया देने वाला है, जिसने रहम ही से तुझे बनाया है, खुदाम कहता है कि मैं खालिक हूं, मैं अकेला आसमान को तानने और जमीन को बचाने वाला हूं, कोई मेरा शरीक नहीं। खुदा की कुदरत यहां पर हम देखते हैं कि वो खुदा जो आसमान को तानने वाला है और वो खुदा जो बचाने वाला है, वो कहता है कि मैं अकेला खालिक हूं, कोई भी मेरा शरीक नहीं, कोई भी मेरे मद्दे मुकाबल नहीं, मैं ही अकेला खुदा हूं और मैं ही बनाने वाला हूं और मैं ही आसमान को तानने वाला हूं और जमीन को मैं बचाने वाला हूं। और वो याद दिलाता है कि मैंने तुझे रहम ही से तुझे बनाया है, और यूं फरमाता है और वो कहता है कि मेरी कुदरत बेपाया है। मेरे अजीजों, आज शाम खुदा हमें याद दिलाता है कि मैंने तेरा फिदिया दे दिया है। खुदा यीशु मसीह आज सबके नाम जानता है। अब वो कहता है कि पास्टर जॉन अशरफ, मैंने तेरा फिदिया दिया है, रेवरेंड डॉक्टर जोसेफ साहब, मैंने तेरा फिदिया दिया है। यानी हर एक उम्मत से, जितनी भी उम्मतों के अंदर लोग बसते हैं, खुदा सबके नाम जानता है, सबको वो कहता है कि तू मेरा है, मैंने तेरा नाम लेकर तुझे बुलाया है और मैंने तेरा फिदिया दिया है और तू मेरा है, क्योंकि कीमत अदा कर दी गई है। बाइबल के अंदर लिखा गया, जब हम कुरिन्थियों के खत का मुताला करते हैं तो वहां पर लिखा है, अब तू अपना नहीं रहा बल्कि तू मेरा है, क्योंकि मैंने तेरी कीमत अदा कर दी है। मेरे जीजो, हम खून से खरीदे हुए उसके लोग हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने हर जाना दे दिया है। यीशु मसीह ने फिदिया के तौर पर अपनी जान को दे दिया है। उसने फिदिया दिया है ताकि हम बचाए जाएं, ताकि हम बहाल हों, ताकि हम सलामती हासिल करें, ताकि हम गुनाहों की माफी हासिल करें। और यीशु मसीह का जो एम है, यीशु मसीह आज फरमाता है कि हम जमीन पर, यीशु मसीह जब आकर हमारे खता, हमारे गुनाहों को मुआफ करता है, तो उसकी आरज़ू है, उसकी ख्वाहिश है। खुदाम रब्बे करीम कहता है कि मैं जमीन पर अपने बेटे को भेजता हूं ताकि उम्मतें छुड़ाई जाएं, नस्लें बचाई जाएं और उनके गुनाह माफ किए जाएं और वो बहाल हों और जिंदगी, बल्कि कसरत की जिंदगी पाएं। खुदा आज बनी नौ इंसान के लिए मोहब्बत के ईमान पर आज बनी नौ इंसान को जिंदगी देने के लिए आया है। और जब हम ज़बूर 78 उसकी 35 आयत को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, उनको याद आया खुदा उनकी चट्टान है, खुदा उनकी चट्टान है और हक ताला उनका फिदिया देने वाला है। मेरे अजीजों, आज हम जानते हैं कि हक ताला ने हमारे लिए फिदिया दिया है, और फिदिया यूं ही नहीं दे दिया गया, फिदिया मोहब्बत के ईमान पर दिया गया है। क्योंकि बार बार इस आयत को हम कोट करते हैं कि खुदा ने दुनिया के साथ मोहब्बत रखी और उसने बख्शिश के तौर पर हमें अपना इकलौता बेटा दे दिया ताकि हम हलाकत से बचाए जाएं और अबदी जिंदगी के वारिस बने। इसलिए मेरे अजीजों, फिदिया दिया गया है मोहब्बत के ईमान पर। और जब हम ज़बूर 19 और उसकी 14 आयत पढ़ते हैं तो लिखा है, ज़बूर नबी कहता है, मेरे मुंह का कलाम, मेरे दिल का ख्याल तेरे हुजूर मकबूल ठहरे, ऐ खुदाम, ऐ मेरी चट्टान और मेरे फिदिया देने वाले। मेरे अजीजों, आज इस बात की आरज़ू हमें रखनी चाहिए, मेरे दिल के ख्याल खुदाम के हुजूर में मकबूल ठहरे, उसकी निगाह में हमारे ख्यालात मकबूल ठहरे, ताकि
वो जो हमारी चट्टान है, वो जो हमारा फिदिया देने वाला है, हमारी जिंदगी को गिरा कदर जाने, हमें पसंद करे और उसकी हुजूरी में हम पसंदीदा हों और उसकी हुजूरी में हम वफादार हों, ताकि खुदा हमें ब्लेस करे। आज शाम खुदा हमें ब्लेस करने आया है। आज शाम खुदा हमें बरकत देने के लिए आया है। आज शाम अपने कलाम की बरकत से हमारी सारी ज़रूरियात, हमारी सारी फिक्रें, हमारे सारे तफक्कुरात, हमारी सारी तारीकी, हमारी सारी खता, हमारे सारे गुनाहों को मुआफ करता हुआ आज हमें याद दिलाता है, ऐ याकूब सुन, ऐ याकूब मैंने तेरा फिदिया दिया है, मैंने तेरा नाम लेकर तुझे बुलाया है, तू मेरा है। मेरे अजीजों, अगर हम यसाया 59 बाब और उसकी 20 आयत का मुताला करें तो लिखा है, फिदिया देने वाला आएगा। ये पेशनगोई है, खुदम का ही अरशाद है। मेरे अजीजों, फिदिया देने वाला आ चुका है, फिदिया देने वाला आ चुका है और फिदिया देकर उसने निजात का बंदोबस्त किया है। और जब हम मत्ती की इंजील के पहले बाब और उसकी 21 आयत में देखते हैं, जब फरिश्ता मरियम के पास आया, जब फरिश्ता मुकद्दसा मरियम के पास आता है तो वहां पर फरिश्ता मरियम से मुखातब है और ये कहता है कि तू उसका नाम यीशु रखना, तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो ही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। यीशु में जो है वो है ही निजात। अगर हम अमाल की किताब के 4 बाब की 12 आयत पढ़ें तो वहां पर लिखा है, आसमान के तले जमीन के ऊपर आदमियों को कोई और नाम नहीं बख्शा गया। यीशु ही एक ऐसा नाम है जो निजात देने वाला है, फिदिया देने वाला है, रहाई देने वाला है, मुखलसी देने वाला है, तारीकी से छुड़ाने वाला है। इसलिए मेरे जीजों, जब यीशु मसीह ने हमारी कीमत अदा कर दी है तो उसका पूरा हक है। और आज खुदा कादिर की आरज़ू है कि उसके लोग जिनके लिए यीशु मसीह ने अपनी जान का फिदिया दिया है, उसके लोग उसकी परस्तिश करें, उसके लोग उसकी इबादत करें। और इबादत हमें कैसे करना चाहिए? यूहन्ना की इंजील के 4 बाब के अंदर लिखा गया कि मैं ऐसे परस्तार ढूंढता हूं, मैं ऐसे परस्तार ढूंढता हूं जो रूह और सच्चाई से मेरी परस्तिश करें। और जब हम अतीक में चलते हैं तो बुजुर्ग मूसा कहता है, तू अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी कुव्वत से अपने खुदा की बंदगी कर। मेरे जीजों, हमारा फिदिया दिया जा चुका है, हमारी कीमत अदा की जा चुकी है। इसलिए आज हम खुदा की हुजूरी में, खुदा के आइन की पासदारी करते हुए, खुदा के असीम कलाम की कदर करते हुए, उस फिदिया की कदर करते हुए, उस कुर्बानी की कदर करते हुए जो मसीह यीशु ने सैक्रिफाइस किया तमाम उम्मतों के लिए, तमाम नस्लों के लिए, आज हम इस हकीकत को हम फरामोश नहीं कर सकते। बाइबल की अजीम सच्चाइयों को हम फरामोश नहीं कर सकते। उसका एक एक लफ्ज जिंदगी बख्श लफ्ज है। बाइबल मुकद्दस अगर हम पैदाइश की किताब से लेकर मुकाशवा किताब का तक मुताला करें तो बाइबल मुकद्दस हमारे लिए जिंदगी बख्श अल्फाजों को पेश करती है और उसका एक एक लफ्ज हमारे लिए जिंदगी बख्श है। इसलिए मेरे जीजों, बाइबल मुकद्दस जो खुदा का कलाम है, जो जिंदा मुदाम है, जो जिंदगी देने वाला है, उस कलाम पर हम अमल पैरा हों और हम याद रखें कि यीशु अल मसीह ने हमारा फिदिया दिया है और फिदिये में उसने अपनी जान दी है। इसलिए मेरे जीजों, आज खुदम यीशु मसीह कहता है, और ज़बूर 19वीं आज ज़बूर 19 उसकी 14 में कहता है, मेरे मुंह का कलाम, मेरे दिल का ख्याल तेरे हुजूर मकबूल ठहरे, ऐ खुदावंद, ऐ मेरी चट्टान और मेरे फिदिया देने वाले। मेरे अजीजों, आज हमारे ख्यालात पाकीज़ा हों। अगर हम खुदा के साथ रफाकत महबूब होना चाहते हैं, अगर हम खुदा के साथ चलना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि हमारे ख्याल, हमारी बातें, हमारी इबादत खुदा की हुजूरी में मकबूल ठहरे, तो आइए मेरे अजीजों, पाकीज़गी इख्तियार करने की जरूरत है, तौबा हासिल करने की जरूरत है, गुनाहों की माफी हासिल करने की जरूरत है। जब हम पाक होंगे, कि कलाम हक में लिखा गया, पाक हो क्योंकि तेरा बुलाने वाला पाक है। पतरस के खत के अंदर लिखा गया, पाक हो क्योंकि तेरा बुलाने वाला पाक है। जब हम पाकीज़ा होंगे, फिर हम खुदा की इस कुर्बानी की अकीदत करते हैं। इसलिए मेरे अज़ीज़ों,
ایک آخری حوالہ میں آپ سب کے ساتھ مل کر پڑھنا چاہتا ہوں۔ مقدس پالوس رسول کا خط کلسیوں کی کلیسیا کے نام لکھا گیا، اس کا پہلا باب 13 اور 14 آیت۔ کوئی بھی بہن یا بھائی یا خدا کا منصور پڑھے۔ مقدس پالوس رسول کا خط کلسیوں کی کلیسیا کے نام لکھا گیا، اس کا پہلا باب 13 اور 14 آیت۔ خداوند کے مقدس کلام سے اسی نے ہم کو تاریکی کے قبضہ سے چھڑا کر اپنے عزیز بیٹے کی بادشاہی میں داخل کیا، جس میں ہم کو مخلصی یعنی گناہوں کی معافی حاصل ہے۔ خداوند کے پاک کلام کو پڑھے سے نظام پر تھینک یو۔ خداوند کے عظیم کلام کی روشنی میں خدا کا بندہ پالوس رسول فرماتا ہے، اسی نے ہم کو تاریکی کے قبضہ سے چھڑا کر، تاریکی سے نکال کر، اندھیروں سے نکال کر، اندھیروں سے چھڑا کر اپنے عزیز بیٹے کی بادشاہی میں داخل کیا ہے، اور جس میں ہم کو مخلصی یعنی گناہوں کی معافی حاصل ہوئی ہے۔ گناہوں کی معافی ایسے ہی حاصل نہیں ہوگی میرے عزیزو، گناہوں کی معافی فدیے کے بعد ہمیں ملتی ہے کہ یسوع مسیح نے ہمارے گناہوں کو مٹا کر، ہمارے گناہوں کو معاف کر کے، ہمیں معافی دے کر، ہمیں مخلصی دے کر، خدا قادر نے اپنے عزیز بیٹے یسوع المسیح کو فدیہ میں دیا، اور اس کی قیمت، اور اس نے ہماری قیمت کو ادا کر کے ہمیں مخلصی، رہائی، نجات دی ہے۔ اور آج ہم اس کا شکر ادا کریں کہ یسوع المسیح نے فدیہ دے کر ہمیں رہائی دی ہے، اس نے ہمیں چھڑایا ہے، اور اس نے ہمیں گناہوں کی معافی دی ہے۔ میرے عزیزو، آج اگر ہم یوحنا کی انجیل کے پہلے باب کو پڑھیں تو وہاں پر لکھا گیا کہ آج جتنے یسوع المسیح کو قبول کرتے ہیں، خدا ان کو اپنے فرزند بنا لیتا ہے۔ آج اگر ہم فرزند بننا چاہتے ہیں تو آئیے یسوع کے پاس چلیں، جس نے ہمارا فدیہ دیا ہے، جو کہتا ہے کہ میں نے تیرا نام لے کر تجھے بلایا، تو میرا ہے۔ آج یسوع بڑے حق کے ساتھ کہتا ہے، کیونکہ جس چیز کی قیمت ادا کر دی گئی ہو اس پر پورا اختیار، پورا حق ہوتا ہے۔ اس لیے آج خدا کے عظیم کلام کی برکات یہی ہے کہ ہم خدا کے ساتھ چلتے ہوئے اپنی زندگیوں کو خدا کے سپرد کریں، اور جانیں کہ یسوع المسیح نے ہمارے لیے اپنی جان کا فدیہ دے کر، قیمت دے کر ہمیں مول لے لیا ہے، ہمیں تاریکی سے نکال دیا ہے، ہمارے لیے وہ مخلصی بنا، اور ہمارے گناہوں کو معاف کر کے ہمیں زندگی کثرت کی برکت دی ہے۔ خدا کے عظیم کلام کا پڑھا سنا اور سمجھا جانا آج شام ہم سبوں کے لیے بہت سی برکتوں کا سبب ٹھہرے۔ آمین۔ عطا کرے پاسٹر اختر نیر آج کے اس زندہ پاک کلام کے وسیلہ سے، اور جو کہ بہت ہی خوبصورت اور کلام کی میٹھی باتیں آپ نے ہم تک پہنچائیں۔ آج کا کلام ہم سب کے لیے واقعی ہی بہت خوبصورت تھا اور سیکھنے والا تھا کہ ہمارے خداوند یسوع مسیح نے ہم سب کے لیے اپنا فدیہ دے دیا ہے، اس نے ہمیں خرید لیا ہے، تو ہمیں بھی اس کے ہونا ہے ہمیشہ کے لیے۔ آج ہم اپنی زندگیوں کو خداوند کی حضوری میں لائیں، اس کے مذبح پر لائیں، اور سوچیں اور جانیں کہ ہمارے خداوند نے ہمارے لیے اپنی جان کا فدیہ دیا ہے، اور ہمیں کیا کرنا ہے۔ ہم دنیا داری کی سوچوں میں گم ہیں، آج ہمیں اپنے خداوند کے ساتھ چلنا ہے۔ سو خداوند آپ کو اپنے جلال کے لیے اور بھی زیادہ کثرت سے استعمال کرے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، اور خداوند ہم سب کو، جتنے بھی اس وقت اس جماعت میں موجود ہیں، سب کو بڑی برکت عطا کرے آج کے کلام کے وسیلہ سے۔ تو میری درخواست ہے بھائی آصف سے کہ وہ کلام کی شکر گزاری کے لیے دعا میں رہنمائی کریں۔ اگر بھائی آصف اویلیبل نہیں ہے تو میری پاسٹر نشان اکرم سے گزارش ہے کہ وہ اس دعا میں رہنمائی کریں۔ آئیں ہم اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا مانگیں۔ قدوس مہربان باپ یسوع تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں آج کی شام کے لیے،
इस खूबसूरत कलाम के लिए जो तूने हमारी ज़िंदगी के लिए बख्शा, खुदा बाप दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हैं। खुदा बाप जितने लोगों ने तेरे कलाम को सुना, मिन्नत मांगता हूँ तो उन सब के साथ हो, उन सब को इस कलाम को समझकर अपनी अमली ज़िंदगी में अपनाने वाले बन सकें। और खुदा बाप ये कलाम ना कि सिर्फ सुनकर अपने तक रखें बल्कि दूसरों तक पहुंचाने वाले बन सकें। खुदा बाप तू अपने खादम के साथ हो जिसके वसीला से आज तेरा कलाम हम तक पहुंचा। खुदा बाप बहुत सारी बरकत चाहते हैं, तेरे पाक रूह के वसीला से उनकी हिफाजत, उनकी सारी ज़रूरियात को तेरे हाथों में देते हैं। खुदा बाप तू उनकी मदद कर और वो सारे काम जो तूने उन्हें सौंपे हैं खुदा बाप अपने रूह के वसीला से मज़ीद इसी तरह तू उन्हें करवाता जा। खुदा बाप तू हमारा खुदा है, हम तेरे बच्चे हैं, हम इस लायक नहीं लेकिन तू हमारा खुदा है जो रोज़ बरोज़ हमें मीठी बातों से सैर करता है। खुदा बाप इसी तरह हम तेरे कलाम को सीखते रहें और जो लोग आज नहीं आ सके खुदा बाप उनको आने की तौफीक बख्श। खुदा बाप बाकी मंदा वक्त तेरे हाथों में देते हैं, तो हमारी रहनुमाई कर ताकि हम मज़ीद तेरे काम को आगे बढ़ाते जाएं और तेरे कलाम को सुनते रहें। ये सारी बरकत तेरे प्यारे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।